ہمارے چینل پر آپ سب کو خوش آمدید۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے کر لیجئے اور بیل آئیکن بٹن کو بھی پریس کر لیں تاکہ تمام نئے آنے والی ویڈیوز کو ٹائملی دیکھ لیں۔ ظالم انسان اپنی طاقت کے بل پر ظلم کرتا رہتا ہے۔ اسے لگتا ہے اسے کوئی اس کے کیے کی سزا نہیں دے سکتا، کوئی اس کی پکڑ نہیں کر سکتا، لیکن اپنی طاقت کے زوم میں وہ سب سے قوت والی ذات کو بھول بیٹھتا ہے۔ بدگمانیاں رشتوں میں فاصلوں کو بڑھا دیا کرتی ہیں۔ جو رشتہ بدگمانی کی بھینٹ چڑھ جائے وہ رشتہ کھوکھلا ہو کر آخر کار ٹوٹ ہی جاتا ہے۔ میرا تعلق جس گاؤں سے تھا وہاں عورت کو اسی وقت حیثیت اور وقت حاصل ہوتی تھی جب وہ بچہ پیدا کرتی اور اولاد کی خوشی دیتی، تبھی وہ قابل عزت اور قابل محبت ٹھہرتی، اور اگر کوئی عورت نہ بن پاتی ماں تو نہ ہی اس کی کوئی اوقات ہوتی اور نہ ہی اس کی عزت کی جاتی، اور نہ ہی اسے شوہر کے گھر میں بسنے دیا جاتا۔ اسے کسی قسم کا شوہر کی زندگی میں مقام حاصل نہ ہوتا، بلکہ اس کے شوہر کو دوسری شادی کروا کر ہی دم لیا جاتا تھا۔ میرے اوپر بھی کچھ ایسا ہی دباؤ تھا، میں بھی اسی قسم کی پریشانی سے گزر رہی تھی۔ شادی کے بعد میں جلدی حاملہ نہیں ہو سکی تھی، میرے پاس اولاد نہیں تھی، اور کئی بار میری ساس میرے شوہر کی دوسری شادی کی بات کر چکی۔ انتظار کرنے کی بجائے وہ اب مجھ سے مایوس ہو چکی تھی اور میرے شوہر کی دوسری شادی کی بات کرنے لگی۔ وہ تو شکر تھا کہ میرے شوہر کی نوکری شہر میں تھی اور اسی لیے ہم گاؤں چھوڑ کر شہر آ گئے تھے۔ وہیں پر قیام تھا دن رات کا، اور ہمارا رشتہ بچ گیا تھا۔ اگر ہم گاؤں میں ہوتے تو اب تک کہ شاید مجھے طلاق ہو چکی ہوتی اور میرا گھر ٹوٹ چکا ہوتا۔ گاؤں کی یہ رسم و رواج ہم عورتوں کے لیے کسی عذاب کی طرح تھے۔ زندگی کی ساری رونقیں ختم ہو جاتی تھی۔ کبھی کبھی تو میرا دل چاہتا کہ میں کہیں سے بھی کوئی بچہ گود لے لوں اور اسی سے اپنی اولاد بنا کر پال لوں اور اپنی پریشانی ختم کر لوں، لیکن میرا شوہر اس بات کے بھی سخت خلاف تھا اور اس بات سے بالکل ہی قطع تعلق رکھے ہوئے تھا۔ اس نے بچے کے لیے مجھ پر کبھی دباؤ نہیں ڈالا تھا، کبھی مجھے طنز نہیں کیا، کبھی برا بلا نہیں کہا تھا، لیکن اس کی یہی خواہش تھی کہ جب بھی اولاد ہو تو ہماری اپنی ہو، کسی غیر کا بچہ ہم کیوں گود لیں، جب بھی ہو تو اپنی ہی اولاد کو پروان چڑھائیں۔ میں نے بہت دعائیں مانگی، نہ جانے کتنے مزاروں پر چادریں چڑھائیں، منتیں مانی، دعائیں کی، صدقے خیرات کیے، اور تب جا کر میری دعا قبول ہوئی۔ میری دہلیز پر بھی خوشی نے قدم رکھا اور میں حاملہ ہو گئی، لیکن شاید قسمت نے یہاں بھی مجھ پر دکھ لکھ رکھا تھا۔ مجھے یہاں بھی تکلیف سے دوچار ہونا تھا۔ جو کچھ میرے ساتھ ہوا وہ سن کر آپ کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے کہ کس طرح قسمت کے ایک تھپڑ نے مجھے کہاں سے کہاں پہنچا دیا تھا۔ میں خوشیوں کا منہ دیکھ کر کیسے غموں کے سمندر میں اتر گئی۔ میری قسمت نے کیسا حسین دھوکہ دیا تھا مجھے، یا پھر یہ شاید سب میرے اپنے ہی غلط فیصلوں کا نتیجہ ہے جو مجھے بھگتنا پڑا۔ اس بات کا فیصلہ میری پوری کہانی سن کر آپ خود کیجیے گا۔ ہمیں شہر آئے یہ چوتھا سال تھا۔ پچھلے 4 سال سے ہم یہیں پہ قیام پذیر تھے۔ میں حاملہ ہو چکی تھی، لیکن میری طبیعت کافی خراب تھی، اور جب میں ڈاکٹر کے پاس گئی تو مجھے پتا چلا کہ میرا حمل ضائع ہونے کا خطرہ ہے۔ یہ سن کر میرے ہوش ٹھکانے آ گئے تھے۔ ایک نئی پریشانی کا سامنا تھا۔ شادی کے 4 سال بعد اب جا کر میری گود بھرنے جا رہی تھی۔ میرے ہاں اولاد ہونے کی خوشخبری ملی تھی، اور میں بھی ڈاکٹر نے ایسی بات بتائی اس میں بھی جس نے مجھے پریشان کر کے رکھ دیا تھا۔ جب سے گاؤں میں میرے حمل کی خبر گئی تھی تب سے میری ساس کو قرار آ گیا تھا۔ میرے خلاف جو مخالفت کا محاذ کھول رکھا تھا وہ اب بند ہو چکا تھا، اور انہوں نے دوبارہ میرے شوہر کے کان نہیں بھرے تھے، نہ ہی دوسری شادی کے لیے اکسایا تھا۔ دوسری شادی کا قصہ ختم ہو گیا۔ اسی لیے جب ڈاکٹر نے بتایا کہ میرا حمل خطرے میں ہے تو میں بہت پریشان ہوئی اور پوچھا، ڈاکٹر صاحبہ اب کیا ہوگا؟ ڈاکٹر نے مجھے تسلی دی اور کہنے لگی، بی بی حوصلہ رکھیں، اتنا پریشان مت ہو۔ میں نے یہ بات آپ کو اس لیے بتائی ہے تاکہ آپ احتیاط کا دامن تھامیں، اپنا خیال بہت رکھیں اور خود کو اس ساری ذہنی پریشانی سے دور رکھیں۔ اس لیے نہیں بتائی کہ آپ ٹینشن لے کر مزید مسائل کھڑے کر لیں، پریشان ہو کر بیٹھ جائیں، بلکہ آپ کو صرف بیڈ ریسٹ کی ضرورت ہے۔ اب آپ آرام کریں، بہت ہے، یہ سب ٹھیک رہے گا۔ اگر آپ اپنا خیال رکھیں گی تو میں یہ بات سنتے ہی بہت ہمت مجھ میں آ گئی۔ ڈاکٹر نے مجھے کچھ دوائیں بتائیں اور کچھ احتیاط بتائی اور کہہ دیا کہ میں گھر کے کام نہ کروں اور وزن نہ اٹھاؤں، مکمل طور پر بیڈ ریسٹ کروں، اپنی خوراک وغیرہ کا خاص خیال رکھوں۔ میں پریشانی سے ڈاکٹر کے کمرے سے باہر نکلی تو میرا شوہر باہر ہی بیٹھا مجھے دیکھ کر فوراً لپک کر میرے پاس آیا اور پوچھنے لگا، کیا ہوا ہے ہیرا؟ ڈاکٹر نے کیا کہا ہے؟ وہ بھی میری طبیعت کی وجہ سے خاصا پریشان تھا۔ میں نے اسے ساری بات بتائی تو وہ بھی پریشان ہو گیا۔ اتنی منتوں مرادوں کے بعد ہماری زندگی میں اولاد آ رہی تھی اور ہم ایسی کوئی بھی بات برداشت نہیں کر سکتے تھے۔ ہم کسی بھی طرح کوئی رسک لینا نہیں چاہتے تھے۔ وہ کہنے لگا، تم فکر نہ کرو، میں اماں سے بات کرتا ہوں، وہ گاؤں سے یہاں آ جائیں گی اور خود تمہارا خیال رکھیں گی، تمہیں کوئی پریشانی نہیں آنے دیں گی، مکمل آرام کرنا تم۔ دلشاد کی بات سن کر میرے تن بدن میں آگ لگ گئی تھی۔ وہ ہر معاملے میں اپنی ماں کو لازمی گھسایا کرتے تھے۔ بڑی مشکل سے تو شہر آ کر
अपनी सास से मेरी जान छूटी थी। अब मैं दोबारा उन्हें अपने सर पर सवार नहीं करना चाहती थी। मुझे अपने शौहर की ये बात सख्त नागवार गुजरी थी। मैंने गुस्से में कहा, इसमें आपकी अम्मा का क्या लेना देना है? इनको क्यों बुलाएंगे यहाँ? इनका क्या काम है भला? हम शहर में रहते हैं, अपने लिए मुलाजमा का बंदोबस्त खुद कर सकते हैं। मुलाजमा रख लेंगे और इसी से सारा काम लेंगे। अम्मा को बुलवाना लाजमी नहीं है। आप हर छोटी से छोटी बात के लिए अपनी अम्मा की तरफ क्यों देखते हैं? कभी तो इनसे हटकर भी कुछ सोच लिया करें। मेरी बात सुनकर दिलशाद के चेहरे का रंग बदल गया। वो कहने लगा, देखो हेरा, मुझे खरीदारी वगैरह के बारे में कुछ नहीं पता और ना ही मुझे किसी मुलाजमा का पता है। अब जब ये परेशानी आई है तो अम्मा ही हमारी मदद करेंगी, ना तुम्हारे घर वाले भी गांव में रहते हैं। ऐसे में कौन तुम्हारा ख्याल रखेगा? तुम्हें मुकम्मल आराम की जरूरत है। दिलशाद की बात सुनकर मैं तंजिया हंसी और नफरत से कहा कि तुम्हारी अम्मा मेरी खिदमत करने के लिए नहीं आएंगी, बल्कि कोई फतवा सादिर कर देंगी। इन्हें लगेगा कि मैं जानबूझकर काम ना करने के लिए बहाने कर रही हूँ और मेरी तबीयत को कुछ नहीं हुआ, सिर्फ ड्रामे कर रही हूँ। हमेशा की तरह वो यही जुमला कहेंगी कि हमने 10 बच्चे पैदा किए हैं, लेकिन कभी ऐसे चोंचले नहीं किए, ना कभी किसी पर बोझ बने हैं, न खाने पीने की खास परवाह रखी। दिलशाद आहिस्ता से कहने लगा, अब ऐसी भी कोई बात नहीं है हेरा, तुम बिला वजह ही अम्मा के बारे में गलत सोच रखती हो। वो तुम्हारा भला चाहती हैं और कुछ नहीं। तुम फजूल में ही उनके बारे में ऐसा सोच सोचकर बदगुमान होती रहती हो। मैंने दिलशाद की बात पर गुस्से से उसे देखा और कहा कि अपनी अम्मा से बात करने की कोई जरूरत नहीं है। मैं अपने और अपने बच्चे के लिए खुद मुलाजमत ढूंढ लूंगी। ये काम भी मैं खुद ही कर लूंगी। तुम्हें कोई जरूरत नहीं है यहाँ किसी को बुलवाने की। मुझे किसी का एहसान नहीं चाहिए। अच्छी तरह पता है मुझे तुम्हारी माँ का। अगर मैं हामला ना होती तो अब तक तुम्हारी और मेरी तलाक करवा चुकी होती, मेरा घर उजाड़ चुकी होती। मेरा बनता हुआ मुंह देखकर दिलशाद खामोश हो गया और कहने लगा, ठीक है, अगर तुम खुद ढूंढ सकती हो तो मुझे क्या इतराज है? ढूंढ लो, कोई परेशानी नहीं मुझे। फिर अगर आम हालात होते तो मैं और दिलशाद एक दफा फिर अम्मा को लेकर बहस शुरू कर चुके होते और झगड़ा तूल पकड़ा भी जाता। लेकिन जब से मैं हामला हुई थी, दिलशाद मेरी हर अच्छी बुरी बात को बर्दाश्त कर रहे थे, वरना अपनी माँ के बारे में एक भी लफ्ज नहीं सुनते थे। जब भी कुछ कह दिया करती थी तो सामने से 10-20 सुनाकर ही दम लेते थे। इनकी रगों में गांव का खून था और वो बीवी से ज्यादा माँ को अहमियत देते थे। यही वजह थी कि मुझे अपने ससुराल वालों से नफरत हो गई थी। बीवी का भी तो कोई मुकाम होता है, उसकी भी कोई अहमियत होती है। मेरा शौहर तो अपने घर का ही होकर रह गया था। हम दोनों अस्पताल से घर आ गए। दिलशाद ने दोबारा मुलाजमा से लेकर कोई बात नहीं की थी। जब तक वो घर पर थे उन्होंने मेरा खूब ख्याल रखा, लेकिन अगली सुबह उन्हें मामूल के मुताबिक दफ्तर जाना था। वो सुबह दफ्तर जाते तो रात गए लौट कर आते। सुबह जब वो जाते तो मैं परेशान हो गई कि अब सारा दिन घर में क्या करूंगी, कैसे संभालूंगी। मुझे बहुत परेशानी होने लगी। मुझे ये फिक्र भी सता रही थी कि अगर मेरे बच्चे को कुछ हुआ तो एक दफा फिर मैं वहीं बीच में जाऊंगी जहां से मैंने ये सफर शुरू किया था। फिर मुझे वही ताने सुनने को मिलेंगे, लोगों की तरह तरह की बातें बर्दाश्त करनी पड़ेंगी। लेकिन फिर भी मैंने दिलशाद से कुछ न कहा, वरना वो एक दफा फिर अपनी अम्मा की बात करते। मुझे अपनी सास से बहुत नफरत थी। मैंने उन्हें ना ही अपने साथ रखना चाहती थी और ना ही अपनी जिंदगी में उनका कोई अमल दखल मैं चाहती थी। मैं अपने आप को बस इनसे बहुत दूर रखना चाहती थी। मुझे तो शादी से पहले ही अपनी सास जहर लगती थी। वो गांव की सबसे चालाक औरत थी, शातिर तरीन। शादी के बाद मैंने बहुत मुश्किल से 1 साल अपनी सास की शक्ल बर्दाश्त की और उसके बाद दिलशाद पर दबाव डाला कि वो मुझे भी अपने साथ शहर ले जाए या फिर तलाक दे दे मुझे, क्योंकि मेरी सास उठते बैठते हर वक्त मुझे बांझ कहती थी और गांव में भी यह मशहूर कर दिया था कि मैं उन्हें पोते पोती की खुशी नहीं दे सकती। उन्हें इस खुशी से महरूम रखा हुआ। दिलशाद शरीफ आदमी थे। वो तलाक के नाम पर डर गए थे, इसलिए वो मुझे लेकर खामोशी से शहर आ गए थे। मेरी सास ने इस बात पर खूब हंगामा डाला था, लेकिन मैंने इनकी एक न चलने दी थी और शहर आ गए थे हम। मेरी और दिलशाद की मोहब्बत की शादी थी और मैं हर वक्त इस मोहब्बत का नाजायज फायदा उठाती थी। हम शहर आए तो मैंने अपनी सास से मिलना जुलना खत्म कर दिया। मैंने पलटकर दोबारा कभी गांव की शक्ल देखी भी नहीं थी, कभी दोबारा वहां नहीं गई थी। मेरे हामला होने की खबर पर मेरी सास मुझसे मिलने शहर आई थी। वो मेरे लिए बहुत सारा सामान और गांव के खालिस खाने लेकर आई थी, लेकिन मैंने उन्हें घास न डाली और इसके बाद वो फिर दोबारा ना आई और मुझे सुकून हो गया। मगर अब इस बेड रेस्ट के चक्कर में मुझे लग रहा था कि कहीं दिलशाद इन्हें मेरे सर पर मुसल्लत ना कर दें। इसीलिए मुझे जल्द से जल्द कुछ करना था। किसी मुलाजमा का बंदोबस्त तो करना ही था। बहुत सोच समझकर मैंने गांव में अपनी अम्मा को फोन मिलाया, उन्हें सारी बात बताई और उनसे कहा कि वो खामोशी से शहर चली आए। मेरी सास को इसकी खबर भी ना हो कि कोई परेशानी है। अम्मा को भी मेरी सास से बड़ी खार आती थी, इसीलिए वो मेरी बात मान गई और कुछ महीनों के लिए मेरे पास शहर चली आई। उन्हें देखकर दिलशाद खुश हो गए और उन्हें तसल्ली भी हो गई कि अब कोई मेरा ख्याल रखने वाला है। लेकिन होने को कौन टाल सकता है? जो होना है वो फिर तो होना ही है और होकर ही रहता है। मेरे हमल का कोई चौथा या पांचवा महीना था जब डॉक्टर ने मुझे बताया कि बच्चे की ग्रोथ रुक चुकी है और मेरा हमल खत्म हो चुका है। ये सुनना था कि मुझे लगा
मेरे सर पर आसमान गिर पड़ा हो। मुझ पर तो गोया क़यामत टूट पड़ी। आंखों के आगे अंधेरा छा गया। मैंने गुस्से से डॉक्टर साहब से कहा, ठीक है, ठीक से चेक करें। वो कहने लगी, बीबी, आपके अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट में यही आया जो हम बता रहे हैं। अब आपको सफाई करवानी होगी ताकि बच्चे को आपके जिस्म से निकाला जाए। मेरी अम्मा मेरे साथ ही थी। वो बहुत परेशान हुई। दिलशाद को फोन करके बुलाया। उनका हाथ भी बहुत खराब था। वो भी इंतहाई परेशान हो गए थे, लेकिन अब बच्चा खत्म हो चुका था। हम क्या कर सकते थे? डॉक्टर ने एक बहुत तकलीफ अमल से सफाई की और मुझे घर भेज दिया। मेरी हालत बहुत खराब थी, लेकिन इससे भी ज्यादा तकलीफ पहुंचाने वाली बात यह थी कि डॉक्टर ने साफ लफ्जों में कह दिया था कि अब मैं कभी मां नहीं बन सकूंगी। मेरे यहाँ कभी औलाद नहीं हो सकेगी। समझ में नहीं आ रहा था कि क्या होगा। मेरी सास तो हर सूरत दिलशाद की दूसरी शादी करवा कर ही दम लेती, और ये बात मुझे किसी सूरत गवारा न थी। मैंने दिलशाद के आगे हाथ जोड़ दिए और उससे कहा कि अपने घर अभी ये खबर ना भेजना। वो परेशानी से कहने लगा, आज नहीं तो कल घर वालों को बताना ही होगा। ज्यादा देर बात छुपी नहीं रह सकती। पता तो लग ही जाएगा एक ना एक दिन। मैंने दिलशाद से कहा कि मैं कोई तरीका ढूंढ लूंगी, किसी और डॉक्टर को दिखा लूंगी, सब कुछ ठीक हो जाएगा। मेरी हालत देखकर दिलशाद खामोश हो गए। दिन ऐसे ही बोझल से गुजरने लगे। मेरी अम्मा मेरे पास ही रुक गई थी, और फिर एक दिन अचानक ही मैं उदास सी अपनी खिड़की में खड़ी थी कि मैंने देखा नीचे पड़ोस में कुछ लोग आए हैं। उनका सामान उतर रहा था, और फिर गाड़ी एक हामला औरत उतर कर घर के अंदर दाखिल हुई थी। इस हामला औरत को देखकर मेरे दिल में एक खौफ सी उठी थी कि काश मैं भी हामला होती तो आज मैं ऐसी ही नजर आती, इसी हालत में होती मैं भी। शाम गए दिलशाद घर आए तो मैंने उन्हें बताया कि पड़ोस में कुछ लोग आए हैं। वो कहने लगे, हाँ, सीधे साधे गरीब से लोग हैं। मेरी मुलाकात हुई है। मजदूर बंदा है, सुबह का गया शाम को आता है। वो लोग साहिवाल से यहाँ आए हैं, यही रहने वाले हैं फिलहाल। शादी के पहले साल में ही अल्लाह ने उनके यहाँ औलाद की खुशी दे दी है। बड़ा खुश था वो बंदा, बहुत खुशी खुशी बता रहा था। मैंने हैरत से दिलशाद को देखा। अभी तो वो लोग आए थे और दिलशाद की उस आदमी से मुलाकात भी हो गई थी। वो मेरी तरफ देखकर मुस्कुराए और कहने लगे, जो सीधे साधे लोग होते हैं ना, वो पास पड़ोस वालों से खुद आगे बढ़कर सलाम दुआ करते हैं, इसीलिए उनसे जान पहचान हो जाती है। यही कोई अमीर शख्स होता तो मुझे देखकर मुंह फेर लेता। मैंने दिलशाद की हाँ में हाँ मिलाई, लेकिन मेरे दिलो दिमाग में भी अजीब ख्यालात चल रहे थे। अगर शादी के पहले साल में वो औरत हामला हो सकती थी, तो मैं क्यों नहीं? अगर उसके घर बच्चा पैदा होने वाला था, तो मेरा बच्चा क्यों जाया हुआ था? मुझे बगैर देखे ही इस औरत से हसद और नफरत का एहसास होने लगा था, जबकि मैं उसे जानती तक नहीं थी। मुझे हसद हो रही थी इस औरत से, मेरे पास ये खुशी क्यों ना होती। इन्हीं सोचों में हफ्ता गुजरा कि मेरी सास का फोन आया और कहने लगी, बहू, तुम्हारा 7वां महीना शुरू हो गया है। मैं कुछ दिनों में तुम्हारी तरफ आऊंगी और फिर तुम्हारी डिलीवरी तक वहीं रहूंगी। ये सुनकर मेरे कदमों तले से जमीन निकल गई। अब तक इन्हें नहीं पता था कि मेरा बच्चा जाया हो चुका है। अगर वो यहाँ आ जाती तो एक नई मुसीबत खड़ी हो जाती। मुझे कुछ ना कुछ ऐसा करना था कि इस मुसीबत से मेरी जान छूटती। मैंने जब अम्मा को ये बात बताई तो अम्मा कहने लगी कि किसी बच्चे का इंतजाम कर लो, कोई मुर्दा बच्चा या कोई भी। हम उसे लेकर गांव चलते हैं और गांव वालों को ये खबर सुना दें कि तुम्हारा बच्चा वक्त से पहले पैदा होकर मर गया है। इस तरह हमारी जान भी छूट जाएगी। अगर तुम शुरू में ही अपनी सास को अपने बच्चे के मरने का बता देती तो ये ना होता। अब इतने वक्त से वो क्या किया जा सकता है? मैंने गुस्से से अम्मा को देखा और कहा, मेरा बच्चा वक्त से पहले जाया हो चुका था। मेरी सास को कभी इस बात पर यकीन ही ना आता कि मैं हामला भी हुई थी। इन्हें लगता कि मैं कोई खेल खेल रही हूँ, इसीलिए इस वक्त मैंने ये बात इनसे छुपाई थी। लेकिन अम्मा, तुम्हारी ये बात ठीक है। अगर मैं कोई बच्चा ले जाकर इन्हें दिखाऊंगी तो इन्हें तसल्ली हो जाएगी कि मैं बांझ नहीं हूँ। अब मैं माँ तो नहीं बन सकती, लेकिन सारी जिंदगी अपनी सास को इंतजार करवा सकती हूँ। हाँ, यही कर सकती हूँ मैं। मामला यहाँ आकर अटक गया कि हम दोनों बच्चे का इंतजाम कहाँ से करें। कोई ऐसा बच्चा जो 7वें महीने में पैदा हुआ हो और जिसे हम गाँव ले जा सकें। कुछ समझ नहीं आ रहा था कि क्या करें। दोपहर के वक्त मैं सौदा लेने के लिए नीचे उतरी तो मेरी मुलाकात इस नई पड़ोसन से हो गई। सर पर दुपट्टा रखे, नजर झुकाए, वो बहुत सीधी सादी लग रही थी और सौदा लेने के लिए ही निकली थी। मैं उसके साथ साथ कदम बढ़ाने लगी और उससे बातें करने लगी। वो वाकई बहुत शरीफ थी। बता रही थी कि उसका शौहर उसे यहाँ लेकर आया है, वो खुद मजदूरी का काम करता है और सुबह का निकला रात को घर आता है। मैं इससे कहा, ठीक है, आज शाम की चाय तुम हमारे साथ पियो। मेरी अम्मा से भी मिल लेना, तुम्हें खुशी होगी। हम भी गांव वाले सीधे सादे लोग हैं। इसका नाम फातिमा था। वो पहले तो मुस्कुराई और फिर कहने लगी कि मेरे पास फोन नहीं है कि मैं अपने शौहर को इत्तला दे सकूं, इसीलिए मैं कल आऊंगी। अपने शौहर को बताए बगैर आना मुमकिन नहीं हो सकेगा। इसकी बात सुनकर मेरे दिमाग में एक ख्याल आया और मैंने उससे कहा कि तुम कौन सा बहुत दूर जा रही हो, पड़ोस में ही तो हमारा घर है और ऊपर खिड़की से नीचे का साफ नजर आता है। मैं तुम्हें चाय के लिए ही तो बुला रही हूँ। अगर तुम्हारा शौहर आया तो भी पता चल जाएगा। तुम वापस चली जाना। तुम्हारा शौहर इतना सख्त तो नहीं होगा कि इतनी छोटी सी बात के लिए तुम्हें इनकार कर दे या फिर गुस्सा करे। उसने फौरन इनकार में सर हिलाया और कहने लगी, नहीं, मेरा शौहर तो बहुत अच्छा है। वो मुझसे बहुत मोहब्बत करता है। वो मुझे नहीं रोकता, लेकिन मैं उसे बताए बगैर कहीं नहीं जाती हूँ।
मगर आप इतनी मोहब्बत से बुला रही हैं तो मैं आ जाऊंगी। हम सौदा लेकर वापस अपने अपने घर पहुंच गए। मैं फौरन ऊपर पहुंची और अपनी अम्मा को बताया कि अम्मा पड़ोस वाली शाम की चाय पर आ रही है। अम्मा कहने लगी, इसे बुलाने की क्या जरूरत थी। मैंने अम्मा को सामने बिठाया और अपने सारे ख्यालात उन्हें बताए तो अम्मा के चेहरे का रंग उड़ गया। कहने लगी, हेरा, दिमाग तो ठीक है ना, तू कैसी बातें कर रही है। मैंने अम्मा से कहा कि अगर तो मेरी शादीशुदा जिंदगी बचाना चाहती है तो तुझे मेरा साथ देना होगा। यही एक तरीका है जिससे मेरी सास का मुंह बंद हो सकता है, वगरना तो मेरा घर खराब हो गया। मेरे आंसू देखकर मेरी माँ राजी हो गई। मैं खुश हो गई और मेरी मेडिकल स्टोर जाकर दवा ले आई। शायद मेरे अंदर का एक हसद जो मुझे सब पर उकसा रहा था। शाम को जब फातिमा हमारे घर आई तो मैं चाय में बेहोशी की दवा डालकर उसे पिला दी। कुछ ही देर में वो बातें करते करते बेहोश हो गई और होश खो बैठी। और फिर हम उसे अंदर वाले कमरे में ले गए। मैंने अम्मा से छुरा मंगवाया। अब मुझे अपने बनाए गए मंसूबे पर अमल दरामद करना था और बड़ी बेदर्दी से उसका पेट चाक कर दिया। एक पल के लिए भी मेरा हाथ ना कांपा था और ना मुझे खौफ आया था अल्लाह का। सच है कि जब शैतान हावी होता है तो इंसान सही गुनाह गलत सब सवाब समझकर भूल जाता है। मेरा हाल भी कुछ ऐसा ही था। अपना घर बचाने के लिए मैं किसी और की गोद उजाड़ रही थी और मुझे इस बात का एहसास तक नहीं हुआ था। मैंने अपना घर बचाने के लिए इस मासूम औरत के घर को उजाड़ दिया था। एक साथ दो दो जिंदगियों के साथ खिलवाड़ किया था। दो दो जिंदगियों को मौत के घाट उतार दिया था। ना ही मेरा कोई डॉक्टर थी, ना ही कोई दाई, ना ही किसी तरबियत याफ्ता, और ना ही मैंने कभी कोई ऐसी हरकत की थी। इसीलिए पेट चाक तो किया तो मुझे कुछ समझ ना आया। मैंने बगैर सोचे समझे सामने नजर आने वाले बच्चे को दोनों हाथों से पकड़कर खींच लिया। उस बच्चे की सांस चल रही थी, उसका दिल धड़क रहा था, वो जिंदा था। मुझे समझ नहीं आ रहा था कौन सी नस काटनी है, कौन सी खत्म करनी है। बस मैंने उस बच्चे को पकड़ा और दोनों हाथों से खींच दिया। इस औरत के जिस्म का आधा सामान भी बाहर निकल आया, लेकिन मुझे फिर भी इस पर रहम ना आया। मैंने इसकी सांस चलती बच्ची को एक शॉपर में डाला और शॉपर को मजबूती से बंद कर दिया। मुझे इस बात का भी खौफ ना आया कि जिंदा है और मेरी इस हरकत से मर जाएगी। मैं एक बेरहम जालिम औरत बन चुकी थी। मैंने तो एक लंबी चौड़ी औरत को काट डाला था। इस वक्त मेरा हाथ नहीं कांपा था तो अब तो मुझे डर क्या लगता। अलबत्ता मेरी माँ की हालत काफी खराब थी। उनके हाथ पांव कांप रहे थे। मैंने गुस्से में उन्हें डांटा और समझाया कि अम्मा, खुद पर काबू रखो वरना हम दोनों पकड़े जाएंगे। अम्मा इस सारी वारदात पर काफी डरी हुई लग रही थी और बार बार अल्लाह का खौफ याद दिला रही थी। लेकिन शायद इस वक्त डर खत्म हो चुका था मेरे अंदर। एक सफाक औरत थी जो हसद की आग में जलते हुए किसी दूसरे की जिंदगी को उजाड़ने के दर पे थी। बेड के नीचे खाली संदूक पड़ा था। मैंने वो निकाल कर उस औरत को जैसे तैसे उस संदूक में डाल दिया था और उसके वजूद से सारा खून बह चुका था। खून में लथपथ वजूद हमारे सामने पड़ा था और कमरे में फैल गया था। मैंने और अम्मा ने मिलकर कमरे को अच्छी तरह साफ किया। सारा खून अच्छे से साफ किया था और इस संदूक को बेड के नीचे ही रहने दिया। हमें सही वक्त का इंतजार था जब हम इस संदूक को ठिकाने लगाते। सारे सबूत मिटाने के बाद मैंने अपने शौहर को फोन करके बुलाया और उनसे कहा कि मुझे एक बच्चे की लाश मिली है, कचरा कुंडी पर पड़ी थी, मैं उठाकर ले आई। अब हम इसे लेकर गांव चलते हैं और सबसे कह देंगे कि ये हमारा बच्चा था जो मर गया है। मेरी बात सुनकर शौहर हक्का बक्का रह गया और कहने लगा, ये तुम किस तरह कचरा कुंडी से बच्चे की लाश उठाकर लाई हो। मैंने कहा, इन सब बातों का कोई फायदा नहीं, बस आप फौरन गाँव चले। मैं खुद भी बहुत परेशान थी, इसलिए मेरी बात वो मान गया। उसने नहीं मालूम था कि ये बच्चा कहाँ से आया है। हम फौरन गांव पहुंचे और वहां जाकर मैंने खूब हंगामा डाला, रोना धोना मचाया। मेरी चीखें, मेरी आहें सारा गांव सुन रहा था और हर कोई मेरे नसीब पर आंसू बहा रहा था। कोई नहीं जानता था कि मैं कैसा बेरहमाना खेल खेल कर आई हूँ। इस बच्चे को गांव में ही दफन किया गया था और उसकी नमाज जनाजा तक पढ़ी गई थी। अगले दिन मैं और मेरा शौहर वापस शहर लौट आए थे। मेरा मंसूबा कामयाब हुआ था। हम शाम के वक्त शहर पहुंचे थे और बाहर ही हमें पड़ोसी नजर आ गया था। वो बहुत ज्यादा परेशान था। मेरे शौहर से उससे सलाम दुआ की तो कहने लगा, मेरी बीवी कल रात से कहीं गायब है। मैं मजदूरी करके लौटा तो वो घर पर नहीं थी। मैंने बहुत तलाश किया, वो कहीं नहीं मिली है। मैं पुलिस में गया लेकिन वो कह रहे हैं कि 24 घंटे से पहले रिपोर्ट दर्ज नहीं करेंगे। वो तो मेरी बीवी पर ही इल्जाम लगा रहे हैं कि किसी के साथ भाग गई होगी। मेरी बीवी ऐसी नहीं है, वो हामला थी, न जाने उसके साथ क्या हुआ है। ये कहकर वो मजदूर रोने लगा। एक लम्हे के लिए मेरा दिल कांप उठा था। मुझे खौफ आया था कहीं सच खुल ना जाए। लेकिन फिर मेरे शौहर ने उसे तसल्ली दी और कहने लगा, हम मिलकर देखते हैं क्या मामला है। मेरे शौहर ने मुझे वापस भेज दिया और खुद उसके साथ उसकी बीवी को ढूंढने निकल पड़ा, मगर वो वहां उनको मिलने वाली नहीं थी। अब रात गए मेरे शौहर लौटा तो उसके चेहरे पर परेशानी थी। कहने लगा, पता नहीं इसकी बीवी कहाँ चली गई है। एक तो हामला थी, ऊपर से ये शहर भी इन लोगों के लिए नया है। मुझे तो बहुत फिक्र हो रही है। बेचारा परेशान है बहुत। मैंने भी अपने शौहर के सामने झूठी फिक्र का इजहार किया और फिर हम सोने के लिए लेट गए। मुझे बार बार ये खौफ सता रहा था कि इस औरत की लाश अभी तक दूसरे कमरे में ट्रंक के अंदर बंद थी। उसे भी तक कहीं ठिकाने नहीं लगाया था। अगले दिन मेरा शौहर काम के लिए चला गया तो मैंने वो ट्रंक निकाला और उस औरत को अपने साथ मिला लिया।
वो अक्सर खाना मांगने के लिए हमारे दरवाजे पर आती थी। मैंने उससे कहा कि इसमें पुराना कबाड़ बंद है, इसे कहीं ठिकाने लगाना है। मेरा शौहर पुरानी चीजें फेंकने नहीं देता, इसलिए मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। इस ट्रंक को कहीं ठिकाने लगाना है, कहीं बहुत दूर यहाँ से। ये सुनकर वो राजी हो गई। मैंने कुछ पैसे उसके हाथ पर रखे और उसके जरिए ही इस ट्रंक को फिकवा दिया था और पुरसुकून हो गई थी। मुझे लगा अब कोई शक नहीं करेगा मुझ पर, किसी को कुछ पता नहीं चलेगा। मगर मैं भूल गई थी कि एक ज़ात ऊपर भी मौजूद है, जो सब कुछ देखती है, सुनती है, जानती है, लेकिन फिर भी वो बंदे को ढील देती है ताकि वो सुधर जाए। लेकिन जब जालिम का जुल्म हद से बढ़ जाता है तो अल्लाह की तरफ से रस्सी खींच ली जाती है, और मुझ पर भी रस्सी खींचने का वक्त आ गया था। इस वक्त मजदूर आदमी की पुलिस रिपोर्ट दर्ज हो गई थी। पुलिस उसकी बीवी को इधर उधर के इलाकों में भी तलाश कर रही थी, और फिर पुलिस को किसी ने उस ट्रंक की इतला दे दी जो उस औरत ने कहीं दूर कचरा कुंडी में फेंक दिया था। जब पुलिस ने तफ्तीश का दायरा वसीर किया, इर्द गिर्द की सीसीटीवी फुटेज निकलवाई, तो हर बात खुद ब खुद सामने आ गई। वो औरत शाम को मेरे घर आई थी। ये बात खुलने में ज्यादा वक्त नहीं लगा। पुलिस ने मेरे घर पर छापा मारा और इन्हें बहुत से ऐसे शवाहिद मिल गए जिसके जरिए कहानी का खुलासा हो गया। मेरे शौहर को कितनी ही देर यकीन नहीं आया था कि मैं इतनी सपाक हो सकती हूँ। वो मुझसे पूछ रहा था कि मैंने ऐसा क्यों किया। मैंने रोते हुए उससे कहा कि मैं तलाक नहीं चाहती थी, मैं अपना घर बचाना चाहती थी। मेरे शौहर ने अपना सर पकड़ लिया, कहने लगा, तुम्हें छोड़ता होता तो 4 साल अपने साथ क्यों रखता, शहर क्यों लाता? शहर भी तो लाया था ना तुम्हें, क्यों लाता फिर? क्यों तुमने मेरी मोहब्बत पर एतबार न किया और एक मजलूम औरत के साथ इतना गंदा खेल खेला? मेरे शौहर ने खड़े खड़े मुझे ये कहकर तलाक दे दी कि वो मुझ जैसी औरत के साथ अपनी जिंदगी नहीं गुजारना चाहता। मेरी अपनी जिंदगी बर्बाद हो गई थी, साथ मेरी माँ की भी जिंदगी खराब हुई थी। मेरा केस अदालत में चल रहा है, मुझे क्या सजा होगी मैं नहीं जानती, लेकिन कभी कभी मैं सोचती हूँ कि मैंने ये सब क्यों किया, सिर्फ इसलिए कि औलाद को लेकर इस मुआशरे ने मुझ पर दबाव डाला था, या फिर मुझे इस हामला औरत से हसद हो गया था, या फिर मैं अपने और अपने शौहर के रिश्ते को बचाने के लिए किसी भी हद तक जा सकती थी। दरअसल मैं तकदीर पर राजी नहीं हो सकी थी और हसद की आग में जलकर अपना ही घर जला बैठी थी, और सफाकी की इंतहा पर पहुंच गई थी, जहां एक मासूम औरत को अब मौत की घाट उतार दिया।